बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 इंट्रोडक्शन। Microsoft Excel is a software program which enables you to organize, format and calculate data with formulas using a spreadsheet system. You have already learned how to enter data, perform calculations and save the workbook. Now, let us learn the various ways to select and enter data. Modify the cell contents, insert or delete cell, columns, rows using autofill and flash fill फीचर। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपको इनेबल करता है ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज के साथ में, जो कि स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। Selecting cells. We usually need to select a group of cells to do various operations such as copying, moving, inserting or deleting. Selecting of cells can be done by any of the following ways. To select a row or column, click the row column heading. To select an entire worksheet, press Ctrl+A or select all button on the top of the first row heading. To select adjacent rows and columns, select the first row or column, then hold down the shift key while you select the row or column. To select non-adjacent rows and columns, select the row and column, then hold down the control key while you select other rows and columns for selection. बच्चों, हम यूजुअली जब किसी भी ग्रुप के डाटा को, सेल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं ऑपरेशन के लिए, जिसमें कॉपिंग, मूविंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग का ऑप्शन होता है, तो हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं उन सेल को। तो सेल को सेलेक्ट करने के लिए रो या कॉलम या फिर रो और कॉलम के हेडिंग को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए एंटायर वर्कशीट को प्रेस कर सकते हैं Ctrl+A या फिर सेलेक्ट ऑल बटन जो टॉप में फर्स्ट रो के हेडिंग में दिया गया है, या सेलेक्ट करने के लिए एडजेसेंट रो या कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं हम फर्स्ट रो या कॉलम को, और होल्ड डाउन कर सकते हैं शिफ्ट की को जब तक आप रो और कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट रोज या कॉलम, हमें सेलेक्ट करना है रो या कॉलम को और होल्ड डाउन करना है कंट्रोल की को जब तक हम रो और कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर लेते। एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट. इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन द फॉर्मेट लाइक 03462, एक्सेल विल ड्रॉप द लीडिंग 0 टू कंटेन द लीडिंग 0 needed in case of telephone area codes, roll number, etc. Type an apostrophe before the number like this 03462. The data is now treated as text and displayed in the same format as it has been entered. Entering date and time. Choose different format, perform the following steps. 1. Go to Home tab. Then from cell group select Format drop down arrow. Find the drop down list. Click on Format Cells option. Click on Number tab. Then in Category list box select Date option to change the format for date or Time option to change the format of time. Choose the required format from Type box and click OK button. बच्चों, अगर हमें डिफरेंट फॉर्मेट को चूज़ करना है परफॉर्म करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को, सबसे पहले हमें होम टैब पे जाना है। उसके बाद सेल्स ग्रुप में से सिलेक्ट करना है फॉर्मेट को, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें मिलेगा। फिर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से क्लिक करना है फॉर्मेट सेल के ऑप्शन को, फिर क्लिक करेंगे नंबर टैब को। अब कैटेगरी लिस्ट बॉक्स में हमें सिलेक्ट करना है डेट के ऑप्शन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं डेट के फॉर्मेट को, और टाइम को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टाइम के फॉर्मेट को, और फिर चूज़ करेंगे रिक्वायर्ड फॉर्मेट को टाइप बॉक्स से और फिर क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। Using undo and redo feature. After making changes in a cell, you may want to cancel the changes and retrieve the earlier data. To undo the last actions done, use the undo button on the quick access toolbar. The redo command is used to quickly repeat the last actions that you have undo using undo command. To do so, click on redo button on the quick access toolbar. बच्चों, अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं या सेल को हम कैंसिल करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं हमारे जो पहले के डाटा है जिसे हमने डिलीट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट एक्शन को अंडो कर देंगे, अंडो के बटन को प्रेस कर देंगे क्विक एक्सेस टूल बार को से, और रीडो कमांड के लिए हम क्विकली रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शन को हम रीडो कमांड को अंडन करेंगे अंडो कमांड से। इसको करने के लिए रीडो बटन को हमें क्विक एक्सेस टूल बार से को प्रेस करना है, लेना है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से जानते हैं। Select cell B3,
delete cell contents, then press undo and press redo. Fun activity, try and find out the use of the following shortcut keys. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Inserting cells, columns and rows. Sometimes while entering data, you may forget to put certain entries. In such cases, you may have to insert some cells, columns or rows in the whole sheet. Let us learn how to insert cells, columns or rows in the worksheet. बच्चों कभी कभी हम डाटा को एंटर करते हुए कुछ एंट्रीज करना भूल जाते हैं. इन केसेस में हम उन डाटा को एंटर करने के लिए सेल, कॉलम और रोज को वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं. किस तरीके से? इंसर्टिंग ब्लैंक सेल्स. ब्लैंक सेल्स कैन बी इंसर्टेड बाय द फॉलोइंग 2 वेज. इन 2 वेज के जरिए हम ब्लैंक सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू नीड टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल्स. यू शुड सिलेक्ट द सेम नंबर ऑफ सेल्स एज यू विश टू इंसर्ट इन द स्प्रेडशीट. Now right click on the range and select the insert option or select the insert button in the cells group on the home tab. Click on the insert cells option from the drop down list. In both the situations you will get the insert dialog box. There are 4 different options to choose within the dialog box as shown in the figure. Select the required option and click on OK button. बच्चों हमें सेलेक्ट करना है सेल के रेंज को जहाँ से आप ब्लैंक सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं और आपको सेलेक्ट करना है सेम नंबर के सेल को जिसे आप स्प्रेडशीट में जिसे इंसर्ट करना चाहते हैं. अभी आपको राइट क्लिक कर देना है रेंज पर और सिलेक्ट करना है इंसर्ट के ऑप्शन को और सिलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट के बटन को सेल्स ग्रुप में जाकर होम टैब के और क्लिक कर देंगे इंसर्ट सेल्स के ऑप्शन को जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा. इन दोनों ही सिचुएशन में आपको इंसर्ट डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा और इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे जो कि आप फिगर में देख सकते हैं जो डायलॉग बॉक्स में दिया गया है. अब सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे. फैक्ट: A range is a group of continuous cells which form the shape of a rectangle. When you select a range, the selection becomes dark with a border around it. Inserting a column or row. Select the column or cell to the left of which a new column is to be inserted. Here we have selected column E. Click on the drop down arrow of the insert button in the cells group on the home tab and select the insert sheet columns option. Excel inserts a blank column to the left of column E and shifts the entries of column E to column F. Similarly, you can insert a row as you insert a column. Select the row or a cell above which a new row is to be inserted and choose insert sheet rows from the options of insert drop down menu. बच्चों अगर आपको इंसर्ट करना है कॉलम या रो को तो सिलेक्ट करेंगे कॉलम या सेल को लेफ्ट से न्यू कॉलम को इंसर्ट करने के लिए. यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है कॉलम ई को. फिर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो हमें नज़र आएगा इंसर्ट बटन जो कि सेल्स ग्रुप में होम टैब के दिया गया है और सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम्स को. एक्सेल इंसर्ट जो है वो ब्लैंक कॉलम हमें लेफ्ट कॉलम ई के और शिफ्ट कर देगा एंट्रीज को कॉलम ई टू कॉलम एफ में. सिमिलरली इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं रो को और इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम को. सिलेक्ट करेंगे रो और सेल को जहां पर आपको न्यू रो को इंसर्ट करना है. चूज़ करेंगे इंसर्ट शीट रोज को कहां से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में. अब आते हैं डिलीटिंग सेल्स, कॉलम्स एंड रोज पर. डिलीटिंग सेल्स. Select the range of cells to be deleted. On the home tab, click on the drop down arrow of the delete button and select the delete cell options. The delete dialog box appears showing 4 options. Choose an appropriate option and choose the change. बच्चों अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे सेल के रेंज को जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. फिर आप होम टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आएगा, डिलीट का बटन आएगा, सेलेक्ट करेंगे डिलीट सेल के ऑप्शन को और उसके बाद डिलीट डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आएगा. अब आप चूज़ कर सकते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन को और आप उसके बाद में चेंज को नोटिस भी कर सकते हैं. Deleting columns or rows. Select the column that is to be deleted by clicking on its header. Click on the delete drop-down menu in the cells group on the home tab and select the delete sheet column option or right-click on the header of the selected column and choose delete option. Likewise, you can delete a row as you delete a column simply by clicking on the row header and choosing delete sheet rows from the options of delete drop-down button. और राइट क्लिक ऑन द रो हीडर एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. बच्चों अगर आपको रो या कॉलम को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम को जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. हेडर पर क्लिक करके
इसके बाद में क्लिक करेंगे डिलीट के बटन पर, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आएगा होम टैब के सेल ग्रुप में। सिलेक्ट करेंगे डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन को, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं उस हेडर पर जिससे आपको डिलीट करना हो, जिस कॉलम को आपको डिलीट करना हो, और चूज करेंगे डिलीट के ऑप्शन को। बिल्कुल इसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने रो को डिलीट किया, आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग रो हीडर से डिलीट शीट रोज से लेकर आप ऑप्शन लेंगे डिलीट ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक कर देंगे, या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं उस रो हीडर को सिलेक्ट करके जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद में डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मॉडिफाइंग रो weight and width. We can modify the standard row height and the column width of the worksheet as per the requirement in Excel. The default value for height and column width is 14.4 points and 8.11 points respectively. To modify the row heights, select the row. In the cell group on the home tab, click on the format button. Click on the row height option. The row height dialog box appears. Enter the required value and click OK. The change will be shown on the selected row. To modify the column width, select the column. Click on the drop down arrow of the format button on the home tab. From the displayed list of options, click on column width. The column width dialog box displays. Enter the required value and click OK. Notice the change on the selected column. बच्चों हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड रो के हाइट और कॉलम के विड्थ को, वर्कशीट को एज पर रिक्वायरमेंट एक्सेल की जो भी रिक्वायरमेंट हो। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है रो की हाइट और कॉलम की विड्थ है वो है 14.4 पॉइंट्स और 8.11 पॉइंट्स। अब हमें रो के हाइट को अगर मॉडिफाई करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रो को, उसके बाद में सेल्स ग्रुप में जाएंगे, होम टैब की क्लिक कर देंगे फॉर्मेट बटन पर, फिर क्लिक करेंगे रो हाइट ऑप्शन को, फिर क्लिक करेंगे रो हाइट डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा। फिर हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे एंटर करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद जो भी चेंजेस हैं आप सेलेक्टेड रो में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कॉलम विड्थ को मॉडिफाई करना है तो आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर फॉर्मेट बटन की जो कि होम टैब में दिया गया है। उसके बाद जो डिस्प्लेड लिस्ट ऑप्शंस हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे कॉलम की विड्थ पर। अब आपको कॉलम का विड्थ का जो डायलॉग बॉक्स है वो नज़र आएगा। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी वैल्यू है उसे एंटर करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें, और अब आपका जो सिलेक्टेड कॉलम में चेंजेस हैं आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। टू इंसर्ट अ ब्लैंक कॉलम और रो, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। अब आते हैं कॉपिंग एंड मूविंग डाटा। Copying means duplicating data such as text, numbers, formulae either in the same worksheet or in a different worksheet. Moving means changing the location of data either in the same worksheet or in a different worksheet. The moved or copied data is stored temporarily in computer's memory called clipboard. To move or copy data, use the cut, copy and paste commands. Step to copy the data are: select the cells or range of cells which you want to copy. Click on Home tab. In clipboard group, select copy option. Click on the destination cell where you want to paste the copy data. Again, go to clipboard group in home tab and select paste option. Let us understand it with the help of an example. Steps to move the data are: select the cells or range of cells which you want to move. Click on home tab. In clipboard group, select cut option. Click on the destination cell where you want to move the data. Again, go to clipboard group in home tab and select paste option. Let us understand it with the help of the example. आप example देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको कॉपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेटिंग डाटा, जो कि टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, फॉर्मूले हो सकता है, या फिर सेम वर्कशीट या डिफरेंट वर्कशीट भी हो सकता है। मूविंग का मतलब होता है कि किसी भी डाटा के लोकेशन को चेंज करना। तो अगर आपको मूव करना है या डाटा को कॉपी करना है टेम्पररीली कंप्यूटर के मेमोरी में, उसे क्लिपबोर्ड कहा जाता है। तो मूव या कॉपी करने के लिए डाटा को, या कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डाटा को कॉपी करने के लिए स्टेप्स दिए गए हैं। पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर हम जाएंगे होम टैब में, उसे क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कॉपी के ऑप्शन को, फिर क्लिक करेंगे डेस्टिनेशन सेल में जहाँ पर आप डाटा को कॉपी करना चाहते हैं, उसे वहाँ पर जाकर उस कॉपी डाटा को पेस्ट कर देंगे। अगेन हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे होम टैब की और सिलेक्ट करेंगे पेस्ट के ऑप्शन को।
चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से और समझते हैं, कैसे हम डाटा को मूव कर सकते हैं। पहले हम उस डाटा को मूव करेंगे, जिसे सेलेक्ट करेंगे जिसे हम मूव करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे होम टैब पर, फिर क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कट के ऑप्शन में और फिर क्लिक करेंगे उस डेस्टिनेशन पर जहां हम डाटा को मूव करना चाहते हैं। अगेन हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे होम टैब के और जो भी हमारा जो डाटा था वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ऑटोफिल एंड फ्लैश fill feature. Autofill. The autofill is the easiest way to fill data automatically in the worksheet cells. Do the following steps to fill data automatically in the worksheet cells. Type January in cell B2. Place the pointer at the lower right corner of the cell. The mouse pointer turns into a plus cross symbol. Hold down the left mouse button and drag the fill handle up to cell B6. Release the button. The months February to May would display in the cells B3 to B6. बच्चों, ऑटोफिल जो होता है वो ईजीएस्ट वे होता है डाटा को ऑटोमेटिकली वर्कशीट सेल में फिल करने के लिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप टाइप करेंगे जनवरी सेल B2 में, फिर उसे प्लेस कर देंगे पॉइंटर को लोअर राइट कॉर्नर में सेल के, फिर आप माउस पॉइंटर को टर्न करेंगे प्लस क्रॉस सिंबल में, उसके बाद होल्ड डाउन करेंगे लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करेंगे फिल हैंडल में जब तक सेल B6 ना आ जाए और फिर वहाँ पर B6 में जाकर बटन को रिलीज कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंथ्स फरवरी से मई अब डिस्प्ले हो रहा है सेल B3 से लेकर B6 में। फ्लैश फिल. Flash fill is a time-saving feature of MS Excel which recognizes the data fill pattern that you use repeatedly in a worksheet and then fills the unfinished series accordingly. Let us try it practically. Make two columns, names and initials in the Excel sheet. Fill the data in names column as shown in the figure. The initial columns should have data that is a combination of the first letters of first name and the last name, like RK for Ravi Kumar. Type RK in the initial columns and press key. Click on the fill drop down arrow located on the home tab in the editing group and select the flash fill option. You can also use a shortcut key Ctrl+E. The initials of the remaining entries will be automatically added to the cells of the initial columns. बच्चों, अगर आपको फ्लैश फिल करना है, ये एक टाइम सेविंग फीचर है MS एक्सेल का, जिसमें डाटा फिल पैटर्न जो है वो रिपीटेडली आप वर्कशीट में फिल कर सकते हैं अनफिनिश्ड सीरीज़ के अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। पहले आपको दो कॉलम्स बनाने हैं जिसमें नेम्स और इनिशियल्स लिखने हैं एक्सेल शीट में। फिर आपको डाटा में नेम्स कॉलम में आप देख सकते हैं डाटा को फिल कैसे किया जा सकता है फिगर में। उसके बाद इनिशियल कॉलम्स में जो डाटा है उसका कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट लेटर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, जैसे RK जो रवि कुमार है। फिर हमें टाइप करना है RK इनिशियल कॉलम्स में और प्रेस करना है एंटर की को। फिर क्लिक करना है फिल ड्रॉप डाउन नैरो जो कि लोकेट है होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के, और फिर सेलेक्ट करना है फ्लैश फिल ऑप्शन को। यहाँ पर आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है Ctrl+E। अब जो इनिशियल रिमेनिंग एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है इनिशियल कॉलम्स के सेल में। अब आते हैं @NoIt पर। Microsoft Excel is a software program which enables you to organize, format and calculate data with formulas using a spreadsheet system. Put apostrophe to make the entry of digits as text having 0 in the first character. The appearance of date and time on a worksheet depends on the date format applied to the cell. You can modify the cell contents directly and change them with a new entry. The cell contents can also be changed by using F2 key. Autofill is the easiest way to fill data in cells automatically. Flash fill recognizes the data fill pattern that you use repeatedly in a worksheet and then fills the unfinished series accordingly. बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of words given below. To copy the data, dash key combination can be used. Ctrl+C. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. Copying means placing data from one place to another. False. True. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश मीन्स चेंजिंग द लोकेशन ऑफ डाटा। मूव। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स और उनके नाम दिए गए हैं उनको मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चैप्टर से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। स्किल शीट, गेम स्किल्स, you are a member of the cultural club of your school. Next week there is an inter-school declamation contest which is categorized in 2 groups. Each house should have 2 participants in each group. The teacher has asked you to create the result sheet for judges with the following fields. बच्चों यहाँ पर कुछ fields दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। Higher order thinking skills. Shika has collected the email IDs of the employees working in an NGO. She wants to create a list of employees with their email IDs and names. Can you help her to extract the names of the employees from their email IDs and fill the column name? बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट स्किल्स पर। Collect the marks details of the students in your class and create a table in Excel with the following fields: roll number, name, class, marks in first term, marks in second term, total marks, percentage. बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल, जो उनके मार्क्स की डिटेल्स है, उन्हें करेक्ट करना है एक्सेल टेबल में, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, फर्स्ट टर्म मार्क्स और सेकेंड टर्मिनल के मार्क्स और फिर उन सभी के टोटल मार्क्स के परसेंटेज को बताना है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।